Hello class, in last lecture we have taken normal form of the equation of plane. So here in the equation of the plane at a distance p unit from the origin to the unit vector n cap to the normal is what r bar into n cap is equals to p. Means what, if there is यहाँ पे क्या रहेगा, if I draw any normal to this plane, okay, if I draw any normal to this plane and here distance from this normal, here normal to this plane from the origin is what, or this point is what, here n cap is this, okay. So and r bar is what, r bar is the any other vector drawn from this point to the plane. So what is the here equation of this normal, what is the equation of this normal which is drawn from the origin to this plane is what, r bar dot n cap. N cap is what, unit vector of what, this n bar. Unit vector is equals to what, p. p क्या रहेगा, p is the distance from this here origin, distance from the origin to this plane, it is nothing but the p. So what is the equation of the plane at a distance p unit. यहाँ पे कोई भी plane रहेगा, this plane का यहाँ पे distance from this origin is what, distance from this origin is what, p. So this is called as the normal form of the vector equation. Now there are some remarks. First is what, if L, M, N are the direction cosine of the normal to the plane, then what is the n cap. N cap is equals to L I cap plus M J cap plus N K cap. अगर n इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ओके, यहाँ पे n क्या है आपका, फुट है आपका परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, एंड ओ एन इज व्हाट, ओ एन इज इक्वल्स टू p, ओके. ये वाला जो है ना यहाँ पे, दिस इज द ओ एन, दिस इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, एंड व्हाट here n is what, n is the foot of this perpendicular. So what are the coordinates of the n? Coordinates of the n is pl comma pm comma pn, where l, m, n are the direction cosines, okay. So these are the coordinates of this point n. Next equation of the plane is lx plus my plus nz is equals to p. Again l, m, n are the direction cosine, x, y, z are the coordinates. This is the normal form of the Cartesian equation of the plane. If two planes are at the distance p units from the origin and n cap is what, n cap is nothing but the unit vector along this normal. So what is this, r bar dot n cap is equals to plus minus this p. p क्या है, अगेन आई सेड p इज नथिंग बट द डिस्टेंस. यहाँ पे हमने क्या किया है, पॉइंट से लिया है. अगर यहाँ पे टू प्लेन्स भी रहेंगे ना, यहाँ पे o की जगह पे एक प्लेन भी रहेगा, फिर भी यहाँ पे डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम ही रहेगा. डिस्टेंस इज व्हाट, r bar dot n cap इज इक्वल्स टू व्हाट, प्लस माइनस दिस पॉइंट p. p is what, distance from this origin to this plane. Now next one we take some examples. If find the vector equation, okay, so find the vector equation of the plane which is at the distance of 6 unit from the origin and to which the vector 2i cap minus j cap plus 2k cap is the normal. So यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा कि p क्या है, यहाँ पे देखो डिस्टेंस, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन एट विच डिस्टेंस, यहाँ पे 6 यूनिट दिया हुआ है फ्रॉम द ओरिजिन. p की वैल्यू हमें दी है 6 यूनिट, एंड विच इज वेक्टर्स क्या है, ये यहाँ पे वेक्टर n बार इज इक्वल्स टू गिवन, n बार इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप. सो नॉर्म ऑफ n क्या रहेगा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3 आ गया, राइट ना. 4 प्लस 1 मीन्स अंडर रूट ऑफ 9 विच इज इक्वल्स टू 3. नाउ व्हाट इज द यूनिट वेक्टर देन, n कैप इज इक्वल्स टू n बार अपॉन norm of n which is equals to what,
which is equals to this. So what is the required equation? हमें उन्होंने क्या पूछा है? वेक्टर इक्वेशन पूछा है. So what is the equation then? Required equation is r bar dot n cap is equals to p. So r bar is into this n cap जो हमने अभी कैलकुलेट किया is equal to 6. r bar हमें पता नहीं है. We want to just find out the equation. इक्वेशन हमारा क्या आ जाएगा? This is our equation. Okay. Now next is find the perpendicular distance from the origin of the origin from the plane. यहाँ पे देखो plane is equals to this. So यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? फर्स्ट वी राइट गिवन कार्टेशियन इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म. सो फॉर्म क्या है? देखो नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू पी. यहाँ पे देखो हमें डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या है आपके? डायरेक्शन एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन. व्हाट आर द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस लाइन? यर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स 1, कोएफिशिएंट ऑफ वाई -3, कोएफिशिएंट ऑफ जेड यर इज 4. So these are nothing but the L M N is equals to 6. So P is equals to what? P is equals to 6. Here direction ratios are this. How we find out here direction cosine? So डायरेक्शन कोसाइन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? हियर दिस वैल्यूज डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. हम ओके यहाँ पे क्या करते हैं? अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. सो क्या आ जाएगा? 9 प्लस 16. 9 प्लस 16 कितने हो जाएंगे आपके? यार 9 प्लस 1 10 प्लस 16 26, राइट ना? So these are nothing but our direction cosine. So how we write down this equation? We can write down this equation as L x plus my plus nz. यहाँ पे देखो this is your L, this is your m and this is your n. Substitute this value, I get this equation. So distance from the origin क्या हो जाएगा फिर? Distance from the origin this is equals to, this is the value of p, then p is equals to क्या आ गया? 6 upon under root of 26. ओके ऐसे उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन. क्या आ जाएगा आपका? 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल्स टू 18. ओके सो डायरेक्शन रेशियोज क्या है आपके? डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल to the plane 2x plus y minus 2z is equals to 18r. क्या रहेंगे हमारे डायरेक्शन रेशियो? ये यहाँ पे जो कोसाइन ये कोएफिशिएंट रहते हैं ना x का 2 1 -2, these are डायरेक्शन रेशियो. डायरेक्शन कोसाइन फाइंड आउट करने हैं. देन 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. सो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा. सो दीज आर माई डायरेक्शन कोसाइन. इक्वेशन पता है नॉर्मल फॉर्म ऑफ द कार्टेशियन. क्या है इक्वेशन? यहाँ पे मैं फिर से लिखती हूँ एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी. कंपेयर करो दोनों को तो क्या आ जाएगा? दिस इज वैल्यू ऑफ एल एम एन एंड हियर पी इज इक्वल टू 6. सो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ द परपेंडिकुलर? कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं? एल पी एम पी एंड एन पी. सो आपके कोऑर्डिनेट्स आपके यहाँ पे देखो ये आ जाएंगे. coordinates are 6 into this, 6 into this, 6 into, so I get this value. Foot of the, again I repeat, foot of the perpendicular मतलब this is nothing but the coordinates of, हमने जो n लिया है ना foot of the coordinate. यहाँ पे देखो ये यहाँ पे जो n आता है ना ये वाला, ये यहाँ पे हमें किसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं? आई वांट टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट n. यहाँ पे इस n के कोऑर्डिनेट्स, दिस इज नथिंग बट द फुट ऑफ दिस परपेंडिकुलर, राइट ना? दिस इज नथिंग बट फुट ऑफ दिस परपेंडिकुलर एंड आई वांट टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस. फॉर दैट व्हाट आई डू? फर्स्ट आई कैलकुलेट हियर डायरेक्शन cosine. Then what we do? We substitute the values of L M N in the formula. What? Lx plus mn plus here my plus nz is equals to p. Then what? We get the values of p. I know the values of L M N. And then what are the coordinates of this foot of the here perpendicular is LP comma NP comma MP. Okay, and substitute this value, we get the answers. Okay,
ऐसे उसे कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है okay, now what next point is angle between the plane. What is the angle between two plane? Okay, so find the angle between two planes. Here we can determine the angle between their normal. हम क्या करते हैं, दो नॉर्मल के बीच का हम एंगल फाइंड आउट करते हैं। इक्वेशन क्या है मेरे प्लेन का, आर एन वन is equals to d1, r n2 bar is equals to d2 bar. These are what, perpendicular to each other if and only if ये दोनों भी ये जो है प्लेन एक दूसरे को परपेंडिकुलर कब रहेंगे, व्हेन n1 बार इंटू n2 बार इज इक्वल्स टू 0, इफ एंड ओनली इफ n1 बार प्लस n2 बार इज इक्वल्स टू 0 रहा तो क्या हो जाएंगे, दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. Now we know the equation of the plane. This is my one here plane, this is my second plane. These two planes are, यहाँ पे देखो अगर r बार इस फॉर्मेट में दिया रहेगा ना आपको नॉर्मल के फॉर्म में, तो आपका कब रहेगा परपेंडिकुलर, जब आपका n1 बार इंटू n2 बार इज इक्वल्स टू 0 रहा तो परपेंडिकुलर रहेगा. बट यहाँ पे मुझे प्लेन इस फॉर्मेट में दिया है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1, एंड ये आपका सेकंड ये वाला फॉर्मेट है. तो ये दोनों पर प्लेन एक दूसरे को कब परपेंडिकुलर रहेंगे, इफ एंड ओनली इफ a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इज इक्वल्स टू 0 रहा तो. अगेन आई रिपीट, दो प्लेन, इफ टू प्लेन्स आर इन द फॉर्म देन व्हाट, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ a1a2 b1b2 c1c2 is equals to 0. Two planes are here perpendicular to each other if this plane are in the form, then when they are perpendicular, when n1 bar into n2 bar is 0. Okay, now next is what, definition of acute angle. Acute angle means what, if two planes are not perpendicular at each other, okay, then angle between them is acute angle. एक्यूट एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स. एक्यूट एंगल क्या रहेगा आपका, यहाँ पे देखो cos थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ n1 बार इंटू n2 बार डिवाइडेड बाय n1 बार इंटू n2 मॉड. देखिए ये दोनों का नॉर्म है यहाँ पे देखो, डिवाइडेड बाय. If they gives one example, find the angle between the planes r bar into this is equals to 8 and r bar into this is equals to 3. अभी देखो फॉर्मेट कौन सा है, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ r bar into n bar is equals to d. ओके, इस फॉर्मेट में दिया है, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी. डिस्टेंस है ये क्या है आपका, यहाँ पे दिस इज नथिंग बट एन बार, ये आपका क्या है, दिस इज माई n1, दिस इज माई n2 बार. ओके, सो फॉर्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. इसका n1 बार का नॉर्म क्या आएगा मेरा, नॉर्म ऑफ n1 बार इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर मीन्स 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 6, सो अंडर रूट ऑफ 6 हो जाएगा. यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सेम अंडर रूट ऑफ 6. ओके, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, व्हाट आई गेट cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 एंड थीटा इज इक्वल्स टू π/3. acute angle between these two normal is what, 60 degree. Now एंगल बिटवीन अ लाइन ए एंड ए प्लेन, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एंगल, यहाँ पे देखो लाइन दी गई है, आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, आर बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू डी. इफ एंड ओनली इफ बी बार एंड एन बार आर द कोलिनियर, आपका बी बार इज इक्वल्स टू व्हाट, टी एन बार, एंड हियर यहाँ पे क्या दिया गया है, एक लाइन है, लाइन इज आर बार, हियर आर बार इज इक्वल्स टू ए बार प्लस लैम्डा बी बार इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ आर बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू डी बार. इफ एंड ओनली इफ कब रहेंगी ये दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल, इफ एंड ओनली इफ दिस बी बार
and this n bar, b bar and n bar are perpendicular to each other, means what, b bar dot n bar is equals to 0. okay, अगेन आई रिपीट, ये दोनों लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर कब रहेगी, व्हेन बी बार एंड एन बार आर कोलिनियर. परपेंडिकुलर कब रहेगी, बी बार इज इक्वल्स टू टी एन बार. एक दूसरे को ये लाइंस पैरेलल कब रहेगी, जब बी बार डॉट एन बार इज इक्वल्स टू 0 रहेगा तब. ओके ना, नेक्स्ट है यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ एंगल. हियर ये एक्यूट एंगल, यहाँ पे एंगल ए इज एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज डिफाइंड एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन नॉर्मल टू द प्लेन एंड लाइन. ओके, तो यहाँ पे एंगल क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई बाय 2, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया, कि पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा, इफ थीटा इज अ एंगल बिटवीन आर बार दिस एंड हियर आर बार डॉट एन बार डी. ओके, तो यहाँ पे एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड द नॉर्मल, ये देखो ये क्या है, मेरी लाइन है, ये क्या है, मेरा इक्वेशन ऑफ प्लेन है. अगेन आई रिपीट, दिस इज माई इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज माई इक्वेशन ऑफ प्लेन. तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइन और प्लेन के बीच का एंगल क्या रहेगा, इज कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू बी बार डॉट एन बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी बार इंटू मॉड ऑफ एन बार. सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ बी बार डॉट एन बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ बी बार डॉट एन बार, ये उसका एंगल रहेगा. यहाँ पे फिर से ये देखो, ये क्या है, एंगल बिटवीन द लाइन एंड प्लेन. यहाँ पे दिस इज माय एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन प्लेन एंड लाइन. ओके, ये क्या है, उसमें डिफरेंस है तो इसमें. Now what is the coplanarity of two lines? कोप्लेनर कब रहेंगे दो लाइंस, यहाँ पे अगर आर बार इज इक्वल्स टू दिस एंड आर बार इज इक्वल्स टू, यहाँ पे दो लाइन, ये प्लेन दिए गए हैं, ये दोनों भी प्लेन कोप्लेनर कब रहेंगे, इफ़ a1 बार a2 बार माइनस a1 बार इंटू b1 क्रॉस b2 इज इक्वल्स टू 0. ओके, अगर ये 0 हो गया ना तो क्या रहता है, ये दोनों भी प्लेन कोप्लेनर कहते हैं हम. ओके, सो इसे आप मैट्रिक्स या डिटर्मिनेंट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं. देखें इक्वेशन, एक तो आपको आपका फॉर्मेट ये वाला दिया रहेगा तो आप ऐसे करो, या फिर x माइनस x1 बार. ओके, दो लाइंस दी है, टू लाइंस आर कोप्लेनर टू ईच अदर इफ एंड ओनली इफ x2 माइनस x, ये वाला फॉर्मेट आपको दिया रहेगा. तो ओके, ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, अगर आपका आ गया तो भी क्या रहेगा, आपके दो ये एक दूसरे को कोप्लेनर हो जाएंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट है यहाँ पे, शो दैट द लाइन आर बार इज इक्वल्स टू, ये आपका आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस लैम्डा 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप एंड आर बार इज इक्वल्स टू, दिस इज द कोप्लेनर. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन डिटरमाइंड बाय देम. तो आपका ये देखो आर बार है, ये आपका आर बार है, ये कोप्लेनर है. यहाँ पे क्या है कि ये दोनों हमें क्या फाइंड करना है, इनका इक्वेशन फाइंड करना है राइट ना. तो आपको हम क्या करेंगे यहाँ पे, इफ़ ये दोनों भी एक दूसरे को कोप्लेनर कब रहेंगे, इफ़ a2 बार माइनस a1 बार इंटू b1 बार क्रॉस b2 बार इज इक्वल्स टू 0. हमने देखा है यहाँ पर, ये देखो, ये दिस इज नथिंग बट आर बार इज इक्वल्स टू
ए बार प्लस लैम्डा बी बार, और ये क्या है मेरा, ये भी सेम है ना, ए बार प्लस लैम्डा बी बार फॉर्मेट है। ये सपोज मैंने ए वन ले लिया, ये मेरा ए टू हो गया, ये मेरा बी वन, दिस इज माई बी टू। ओके, एंड ये करो, इन दोनों को कंपेयर करो, तो क्या हो जाएगा, ए वन इज दिस, ए टू इज हियर दिस, ये मेरा बी वन है, दिस इज माई बी टू। फाइंड आउट करो ए टू बार माइनस ए वन बार, एंड देन अगेन यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया, बी वन क्रॉस बी टू, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, डिटर्मिनेंट फाइंड करो। यहाँ पे देखो ये ज़ीरो आ गया, दिस इज इक्वल्स टू ज़ीरो, सो क्या हो गया, दिस टू, ये जो है ना, ये दोनों भी क्या हो गए, कोप्लेनर, दिस टू लाइन्स आर व्हाट, कोप्लेनर। अभी उन्होंने क्या क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, अभी हमें उस इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करना है। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आ जाता है फिर, आर बार माइनस ए वन बार इंटू बी वन क्रॉस बी टू। तो यहाँ पे हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की एंड फाइंड आउट कर दी। ओके, नाउ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट इन फ्रॉम प्लेन, ये आपका डिस्टेंस रहता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द ये पॉइंट फ्रॉम द प्लेन इज इक्वल्स टू आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू ए बार डॉट एन कैप इज ए मॉड ऑफ ए बार डॉट एन कैप। एक एग्जांपल हमें दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम द प्लेन, सो ए बार इज इक्वल्स टू दिस, एन बार इज इक्वल टू दिस। ये हमारा पॉइंट ए बार है, इस प्लेन से हमें क्या करना है, उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। दिस इज ऑफ द फॉर्म आर बार इंटू एन बार इज इक्वल्स टू डी बार, सॉरी इज इक्वल्स टू डी। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये आपका ए बार है, ये आपका एन बार है, मॉड ऑफ एन बार निकाला, एन कैप निकाला हमने, राइट ना, हमें पी फाइंड आउट करना है। तो नॉर्मल इक्वेशन क्या है, आर बार डॉट एन, ये आपका एन कैप इज इक्वल्स टू पी, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी। सो पी इज इक्वल्स टू हमें मिल गया ये। सो हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ए बार डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हमें मिल गया, सो दिस इज इक्वल टू -5, सो मॉड ऑफ ए बार डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू 5। आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन क्या हो गया, p माइनस दिस, p क्या आया था मेरा, p इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इज इक्वल टू 3। सो डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन क्या हो गया आपका, 3 यूनिट। ओके, ऐसे क्या करना है, हमें वो डिस्टेंस कैलकुलेट करना रहता है। ओके, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है प्लेन ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर से हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट विथ अवर नेक्स्ट चैप्टर LPP। ओके, यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग का जो है ना, उससे हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।